Good morning, everyone. Welcome to our new session. Today, we will continue with the lesson The Summit Within in unit number 5. In previous session, we have discussed that Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this lesson, he shared his experience of expenditure to Mount Everest and also told that the three qualities that played a major role in my climb are endurance, persistence, and willpower. Today, moving forward, let's discuss the previous session and this lesson. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional and it is spiritual. So, in last session, I have told you that climbing a mountain is highly a risky job and needs others' help also. The fellow climbers, they remember their gods to feel confident. It is far more difficult to climb the summit within oneself than to climb the summit of a mountain. सो यहाँ पे जो मेजर आलूवालिया है वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, वो जो एक्सपीरियंस वो ओनली फिजिकल नहीं था, वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी था एंड साथ में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी था. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. यू आर शेयरिंग अ रॉप विथ अनदर क्लाइंबर. वहाँ पे क्या करना होता है, जब कोई समिट पे लास्ट हाइट्स पे जब क्लाइंब करना है तो वहाँ पे एक क्रॉप होता है, वो हमें दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करना पड़ता है. यू फर्मिंग मीन्स मेक योर सेल्फ फर्म. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. Even जो famous क्लाइंबर्स हैं उन्होंने भी वो रिकॉर्ड्स छोड़े हैं कि जब उनको किसी और ने हेल्प की थी. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प एल्स दे माइट हैव गिवन अप. क्या बोल रहे हैं, जो फॉर्मर जो थे रिकॉर्डर, फॉर्मर फेमस क्लाइंबर्स थे, वो भी एक्सेप्ट कर रहे, कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने भी दूसरों की हेल्प ली थी, अगर किसी ने मुझे हेल्प नहीं की होती तो मैं भी गिव अप कर देता. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. At the height of the summit, breathing also makes difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. Ascent means climb. यहाँ पे जब आप समिट पे पहुंचने आते हो तब कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता होगा कि मैंने ये क्लाइंब क्यों किया. देर आर मोमेंट्स वैन यू फील लाइक गोइंग बैक. कभी कभी ऐसी भी मोमेंट्स आती होगी कि आपको ऐसे फील होता होगा कि मैं अब यहाँ से वापस चला जाता हूँ, अब मैं ऊपर नहीं जा सकूँगा. देन इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. There is something in you that does not let you give up the struggle. Now turn another page and you go on. यहाँ पे जो मेजर आलूवालिया है वो क्या बता रहे हैं, वन कैन गेट फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ मियरली बाय क्लाइंबिंग वंस पर्सनल एंड इंटरनल माउंटेन पीक जस्ट another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, इज़ दैट नो एंड. कभी कभी आपको लगता होगा कि अभी तो बस 50 फीट है. देन कभी कभी आपको ऐसी भी फीलिंग आती होगी कि अभी 100 फीट्स भी बाकी होंगे. कभी ऐसे भी डाउट्स होता होगा कि अभी एंड है कि नहीं है इसका. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर.
फिर जो अदर क्लाइंबर्स होते हैं उनके साथ आप अपना इंस्पिरेशन जो है वो ड्रॉ करते हो, एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Worthwhile. What is the meaning of worthwhile? Worthwhile means constructive. Others silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. जब आप समिट पे पहुंच जाते हो तो आपको कैसी फीलिंग्स आती है, यहाँ पे आलू वालिया उसके बारे में बता रहे हैं कि जब आप समिट पे होते हो तो आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास के जो पिक्स हैं वो ज्वेल्ड नेकलेस की तरह दिखते होंगे आपको. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस. इट इज़ एन ennobling enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. Means you have to show your obedience or submission. I left on Everest a picture of गुरु नानक. यहाँ पे आलू वालिया क्या बता रहे हैं कि जब मैं एवरेस्ट पे पहुँचा था, पीक पे पहुँचा था, तो मैंने वहाँ पे गुरु नानक की एक पिक्चर जो थी वो मैं वहाँ पे रख के आया था. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट रावत दैट ही लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. मैंने गुरु नानक की पिक्चर वहाँ पे रखी एंड जो रावत था, उनका जो पार्टनर था, कंपेनियन था, उसने दुर्गा माता की वहाँ पे फ़ोटो रखी. फू दोरजी लेफ्ट और रेलिक ऑफ द बुद्धा. एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ केन. वो अपने दूसरे क्लाइंबर्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फू दोरजी थे उन्होंने एक बुद्धा की तस्वीर वहाँ पे रखी थी, एंड एडमंड हिलरी जो है उन्होंने एक क्रॉस था वहाँ पे बरीड किया था अंडर अ हिप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो. These are not symbols of conquest but reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. एंड जो एक्सपीरियंस होता है जब आप समिट क्लाइंब करते हो तो वो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देता है. देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ. क्यों? तो एक दूसरा भी समिट होता है जो आपके अंदर होता है. इट इज़ इन योर माइंड. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पिक. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. वो किसी और के द्वारा नहीं होगा, आपको खुद क्लाइंब करना पड़ेगा. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. Akin, here the word is unfamiliar to you. Akin. Akin means like, similar to. यहाँ पे आलू वालिया क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल एक्ट है क्लाइंब करने का, समिट क्लाइंब करने का, माउंटेन का, वो किसके सिमिलर है? द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन. द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम. एंड जो इफ़ेक्ट होती है दोनों ही क्लाइंब की वो सेम होती है. द ऑथर, यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं HPS आलू वालिया, यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द ऑथर एंड फू दोरजी ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. वहाँ की तस्वीर ये है. देन जो ऑथर है वो क्या बता रहे हैं कि दोनों की जो इफ़ेक्ट्स है क्लाइंब की वो सेम है. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू. इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. क्या बोल रहे हैं आलू वालिया? ऑर्डिल्स मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंस. वो बोल रहे हैं दैट मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है एवरेस्टर का, एज ए एवरेस्टर, वो एक्सपीरियंस मुझे क्या प्रोवाइड करता है, तो हमारी लाइफ में जो पेनफुल एक्सपीरियंस है वो कैसे फेस करने हैं, उसमें से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला है विथ डिटर्मिनेशन और फर्मनेस. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are
perhaps higher than Everest. So, Major Ahluwalia said it is fearful and unscalable. Unscalable means unclimbable, like the climb to the summit of a mountain. Both the climbs teach one much about the world and about oneself. The internal summits are much higher than Everest. So at the end, he said the climber gets the inspiration to face life's ordeals with determination. So here we have completed the explanation of this lesson, The Summit Within by HPS Ahluwalia. Okay? Bye everyone. Thank you. Have a nice day.